Today we are going to continue with the chapter Life Processes in Living Organisms Part 2. Now till now in this chapter what have we studied? We have studied about asexual reproduction in unicellular and multicellular organisms, and we learnt about sexual reproduction in plants. In the last lecture I explained you all the structure of male and female reproductive system with the help of those diagrams, and today we will be learning how the process of sexual reproduction occurs in human beings. Now I told you all that any form of sexual reproduction, be it in plants or be it in human beings, it involves two steps. And what are those two steps? They are gamete formation and fertilization. What are those two steps involved in sexual reproduction? Gamete formation and fertilization, right? So when we talk about sexual reproduction in human beings, गैमेट फॉर्मेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे होता है. ओके, सो लेट अस बिगिन विद गैमेट फॉर्मेशन. नाउ ह्यूमन बीइंग्स में व्हाट इज द मेल गैमेट? The male gamete is the sperm, and what is the female gamete? The female gamete is the ovum. So human beings में the male gamete is sperm and the female gamete is ovum. So where is this male gamete formed? This male gamete is formed in the testes, and this female gamete is formed in the ओवरी. ओके, सो नाउ ये दोनों जो प्रोसेसेस होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दे आर टू वेरी डिफरेंट प्रोसेसेस. तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो होता है ना, इट बिगिंस इन अ मेल एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी मतलब क्या? इट इज द एज ग्रुप ऑफ 12 to 13 years. So whenever a male reaches the age of 12 to 13 years, उसके टेस्टिस में sperm formation चालू हो जाएगा. So this signifies कि इस एज पे he is fit for reproduction. He is able to form gametes now, which means that he can reproduce now. So in males, the formation of sperm, that is the formation of male gametes, starts at puberty and it continues till it may even continue till the death of the person. ठीक है, there is like it does not stop at a particular age. It continues for a very long time. So it starts at puberty and it continues till old age. Now let's talk about females. फीमेल्स में जो ये गैमेट फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दिस स्टार्ट्स एट बर्थ इटसेल्फ. दैट इज व्हेन अ फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न, उसके ओवरी में ही बहुत सारे ओवम होंगे. ठीक है, इट स्टार्ट्स एट बर्थ इटसेल्फ. एंड जैसे मेल्स में ये हमेशा चलते रहता है प्रोसेस गैमेट फॉर्मेशन का, फीमेल्स में ये प्रोसेस हमेशा नहीं चलेगा. दिस प्रोसेस विल एंड एट द एज ऑफ 45 to 50 years. That is when a female reaches the age of 45 to 50 years, this process of gamete formation will stop in her, and that phase is called as menopause. What is it called? Menopause. Pause का मतलब क्या होता है? Stop. मतलब वो चीज़ फीमेल्स में और गैमेट्स बनना बंद हो गए. So that is called as menopause. Okay. So in gamete formation in human beings, the male gamete is sperm, which is formed in the testes, and female gamete is ovum, which is formed in the ovary. अब males में the formation of sperm starts at puberty. Puberty मतलब the age of 12 to 13 years, and it continues till old age. Females में the gamete formation starts at birth itself and it continues up to the age of 45 to 50 years. That period is called as menopause. Okay, so this was about gamete formation. Now let us learn about fertilization in human beings. Now what is fertilization? फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या था? इट इज द यूनियन ऑफ मेल गैमेट
विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में ज्वाइन करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, द स्पर्म जो कि क्या है, मेल गैमेट है, विल ज्वाइन विद द ओवम विच इज द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट। अभी ये स्पर्म हैप्लॉइड है, ओवम हैप्लॉइड है, तो हमारा जाइगोट क्या रहेगा, डिप्लॉइड। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, स्पर्म यूनाइटेड विद द ओवम टू फॉर्म द जाइगोट। अभी ये हुआ कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले वी लर्नड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आई टोल्ड यू देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीमेन, राइट। एक लिक्विड होता है विच कम्स आउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विच इज कॉल्ड एज सीमेन। एंड ये सीमेन के अंदर क्या क्या होता है, स्पर्म्स प्लस सिक्रीशंस। स्पर्म्स हमारे मेल गैमेट है एंड सिक्रीशंस जो सारे ग्लैंड्स बना रहे हैं, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, जो हम लोग ने वो डायग्राम में पढ़ा था, वो सारे ग्लैंड जो सिक्रीशन बना रहे हैं वो, और स्पर्म्स मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन। तो व्हाट हैपेंस इज, अभी the semen contains millions and millions of sperm, okay, one drop of semen has millions and millions of sperm. So सबसे पहले what happens, semen is deposited in the vagina. So सबसे पहले what will happen, the male will deposit the semen in the vagina of the female with the help of penis, okay. सबसे पहले ये स्टेप होगा कि semen is deposited in the vagina of the female with the help of penis. अब उसके बाद में क्या होगा, जो semen फिर vagina में पहुंच गया, then semen के अंदर क्या है, sperms, तो वो sperms क्या करेंगे, they will start going towards the ovum, they will start swimming towards the ovum, okay. So the sperms will start swimming towards the ovum. Then अभी मैंने बोला सीमेन में millions and millions of sperms है, so ये millions and millions में सारे sperms नहीं पहुंच पाएंगे ovum तक. Out of this only one sperm will be able to reach the ovum. So one sperm. Now हाउ डू दी स्पर्म्स ट्रैवल, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डायग्राम हमने देखा था, वेजाइना में वो लोग डिपॉजिट हुआ सीमेन, वेजाइना से वो लोग फिर जाएंगे यूट्रस में, एंड यूट्रस से वो लोग जाएंगे ओविडक्ट में। ओविडक्ट हमारा जो फेलोपियन ट्यूब था। अभी आई हैड टोल्ड यू, रिमेंबर ओविडक्ट क्या करता है, जब भी ओवरी ओवम बना लेती है तो वो ओविडक्ट ओवम को ऐसे पिकअप करके अपने पास रखता है एंड वो वेट कर रहा होता है कि कब स्पर्म आएगा। तो ओवम कहाँ है, अभी ओविडक्ट के पास है। तो ये स्पर्म स्विमिंग करते हुए कैसे गए, दे वेंट टू द वेजाइना, देन दे वेंट टू द यूट्रस एंड देन दे फाइनली रीच द ओविडक्ट। अभी उतने सारे स्पर्म्स में से ओनली वन स्पर्म रीचेज द ओवम, और जो एक स्पर्म जो जीत गया, जो ओवम के पास जाएगा, वो उसको फर्टिलाइज कर देगा एंड दिस विल लीड टू फर्टिलाइजेशन। इफ यू ऑल हैव, आई एम श्योर मेजॉरिटी सबने वो मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में स्टार्टिंग में ही दे से कि लाइफ बिगिंस इन अ रेस। तो व्हाट इज दैट रेस, अभी इतने सारे स्पर्म्स डिपॉजिट हुए लेकिन सबने शुरू में ही एक रेस लगा ली कि कौन जीतेगा और कौन जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा। सो दिस इज दैट रेस विच द स्पर्म्स रन। वो लोग रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं, वेजाइना से यूट्रस, यूट्रस से ओविडक्ट, और जो भी वो रेस में जीतता है वो पहले वो ओवम के पास जाता है और वो ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो what is fertilization? It is the union of sperm and ovum, that is male gamete and female gamete to form a zygote. How does this happen? सबसे पहले the semen is deposited in the vagina. Then semen के अंदर क्या है, sperms. ये sperms ने रेस लगा ली, ये लोग स्विमिंग करने लग गए, वेजाइना से यूट्रस गए, यूट्रस से ओविडक्ट गए, और ये मिलियंस ऑफ स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो ओवम के पास पहुंच पाता है एंड जाके ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो वी लर्नड अबाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड वी लर्नड अबाउट फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट तो बन गया, अभी ये जाइगोट आगे कैसे डेवलप करेगा। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। How does the embryo develop further? अभी सबसे पहले क्या हुआ, जाइगोट बन गया, ठीक है।
Now this zygote will undergo mitotic divisions. What it will undergo? Mitotic divisions. अभी मैंने I have explained you all what is mitosis in the chapter before that. Mitosis में क्या होता है? A diploid cell will divide to form another diploid cell. मतलब there is no change in the number of chromosomes. तो ये डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो माइटोसिस अंडरगो करेगा और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते जाएगा, मतलब इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन साइज एंड फाइनली इट विल रीच द यूट्रस. ये जाइगोट कहाँ पे था? ओविडक्ट में था, बराबर. अभी ओविडक्ट जो है वो बहुत ही नैरो ट्यूब है, उसने एक छोटे से जाइगोट को तो अकोमोडेट कर लिया, बट जब वो जाइगोट साइज में बड़ा होने लगता है तो ओविडक्ट के पास इतनी स्पेस नहीं होती कि वो उसको अपने पास अकोमोडेट कर सके. So, when the zygote starts undergoing mitotic division, it will finally reach the uterus. And uterus में जाके it will get implanted in the uterus and this is called as implantation. तो वो यूट्रस के पास जाएगा, जो हमारा जाइगोट बड़ा हो गया है, जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड यूट्रस बहुत बड़ा है एंड यूट्रस इज लाइक अ मस्क्यूलर बैग, लाइक उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो साइज में बड़ा होता जाए. ठीक है, ओविडक्ट के पास वो कैपेसिटी नहीं है. तो अभी ये जाइगोट साइज में बड़ा हो रहा है, इट इज गोइंग टू फॉर्म द एंटायर बेबी, तो उसको बड़ा स्पेस चाहिए, इसीलिए वो अभी यूट्रस में चला जाता है. एंड एज द जाइगोट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन साइज, द यूट्रस आल्सो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन साइज टू अकोमोडेट दिस जाइगोट. So this process by which the zygote goes and gets implanted in the uterus, वहाँ जाके वो बैठ जाता है, is called as implantation. What is it called as? Implantation. तो वो जाइगोट यूट्रस में जाके बैठ गया एंड इट विल कंटिन्यू टू ग्रो इन द यूट्रस एंड फाइनली एट द एंड ऑफ 9 months वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, पूरी तरह से द एम्ब्रियो विल बी फॉर्म एंड द बेबी विल बी डिलीवर्ड आउट इनटू द वर्ल्ड. तो क्या हुआ? जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद. ये जाइगोट कहाँ पे है? ओविडक्ट में. फिर ये जाइगोट ने क्या किया? माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट किया. माइटोटिक डिवीजन मतलब क्या? द टाइप ऑफ डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम. सो ये जाइगोट साइज में बड़ा होने लगा. नाउ दिस ओविडक्ट इज नॉट सो बिग दैट इट कैन अकोमोडेट द ग्रोइंग जाइगोट. So what will happen? The zygote will be transferred to the uterus and it will implant in the uterus and this is called as implantation. And zygote's further development will occur in the uterus and this entire thing will take a period of 9 months. And 9 months के end में when the baby is completely formed, the baby will be delivered out into the world. Okay? So this was about sexual reproduction in human beings. Okay? So now let us begin with another topic, which is called as menstrual cycle. What is menstrual cycle? अभी menstrual cycle का definition है, it is the cycle which occurs in females every month after the age of 12 to 13 years. ठीक है. So क्या होता है? Whenever a female reaches the age of 12 to 13 years or the ideal age group is between 10 to 17 years. तो इस एज ग्रुप के बीच में द फीमेल इज सेट टू बी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर. जैसे मेल्स में प्यूबर्टल एज ग्रुप होता है 12 to 13 ईयर्स का, वैसे ही फीमेल्स का जो ये एज ग्रुप है ये उनका प्यूबर्टल एज ग्रुप है. दिस इज द पीरियड व्हेन दे आर फिट टू रिप्रोड्यूस, दे आर फिट टू बिकम अ मदर नाउ, बिकॉज उनकी बॉडी में कुछ बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंड उन चेंजेस में से एक बहुत ही मेजर चेंज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है बेसिकली? अभी ऑल ऑफ यू ऑल नो कि जो ओवम है वो कहाँ पे बनता है? ओवरी में बनता है. ठीक है. एंड मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया कि ये जो प्रोसेस होता है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, इट बिगिंस एट बर्थ इटसेल्फ. दैट इज व्हेन अ फीमेल इज बोर्न, इन हर ओवरी देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ओवम व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट. ठीक है. शी इज बोर्न विथ मेनी ओवम, बट ये जो ओवम है तभी इमेच्योर स्टेट में है, दे आर नॉट मैच्योर इनफ. ओवम है तो सही, बट व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज 4 years, 5 years, 6 years old, that time in spite of having ovum, she is not fit to reproduce that time because वो ovum अभी immature state में है.
लेकिन क्या होता है, when she reaches a age group of 11 years, 12 years, 13 years, it differs from a girl to girl. So when she reaches that age group, her ovum starts maturing. मतलब अभी she is fit to reproduce, she is fit to become a mother. तो ये सारी चीज़ें जो होती है, मैच्योरेशन ऑफ ओवम वगैरह, ये सारे कौन किसके कंट्रोल में होता है, कौन करता है ये सब? सो ऑल दिस अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स. ठीक है, थोड़े हॉर्मोन्स होते हैं जो ये सारी चीज़ें एक फीमेल की बॉडी में कंट्रोल करते हैं. अभी एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और वी राइट इट एज FSH. अभी ये FSH हार्मोन का लेवल व्हेन अ फीमेल रीचेस द एज ग्रुप ऑफ 12 to 13 ईयर्स, ये FSH हार्मोन का लेवल उसकी बॉडी में बढ़ जाता है. ठीक है, देयर इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. तो अभी लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, वो जो ओवरी के अंदर ओवम प्रेजेंट है, राइट. अभी ये हमारी ओवरी है एग्जाम्पल, और इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, एंड इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स. क्या बोलते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स. एंड ये ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर हमारे ओवम प्रेजेंट है. मतलब क्या, ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स है, एंड ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर ओवम है, उसके अंदर फीमेल गैमेट है. तो ये फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ गया. सो व्हाट इट विल डू, see the name, it is follicle stimulating hormone, so it will stimulate these follicles, it will stimulate the follicles to release the ovum. मतलब वो क्या बोलेगा, चलो अभी तुम लोग बड़े हो जाओ, जो ओवम तुम लोग ने अपने पास अब तक रखा है उसको बाहर छोड़ दो. So these follicles will mature. So what this will cause, follicle stimulating hormone will cause the maturation of follicles. कि चलो अभी तक तो तुम लोग बच्चे थे, अभी जल्दी जल्दी तुम लोग बड़े हो जाओ. तो प्यूबर्टी पे सबसे पहले क्या हुआ, देयर वाज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन देयर वाज मैच्योरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स. ठीक है, अभी क्या हुआ, फॉलिकल्स मैच्योर तो हो गए, अभी बड़े हो गए. अभी वो लोग बोल रहे चलो अभी हमारे अंदर जो ओवम है उसको अभी हम लोग को बाहर निकालना है, अभी इसको हमको हमारे पास नहीं रखना है. तो जैसे ही ओवेरियन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक और हार्मोन बढ़ेगा जिसको बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. क्या बोलते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और यू कैन राइट इट एज शॉर्ट फॉर्म में LH. तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये जो फॉलिकल्स मैच्योर हो गए हैं इसमें से वो ओवम को बाहर निकाल देगा. इट विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम. ठीक है, तो क्या हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा, वो फॉलिकल्स मैच्योर हो गए. फॉलिकल्स मैच्योर हो गए, वैसे ही क्या हुआ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ गया. और जैसे ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ गया, वहाँ पे क्या हुआ, जो ओवम वो फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट था वो बाहर रिलीज हो गया. ओवरी से बाहर आके वो अपने फॉलिकल्स के बाहर निकल गया. अभी ओवम बाहर आ गया, जैसे ही ओवम बाहर आ गया उसको किसने देखा, ओविडक्ट ने देखा. अभी ओविडक्ट ने बोला कि चलो अभी मुझे मेरा काम करना है. ओविडक्ट का काम क्या है, इट्स फंक्शन इज टू पिक अप द ओवम. सो व्हाट इट विल डू, release of ovum, तो oviduct will pick up the ovum. ठीक है, अभी हमारी बॉडी को नहीं पता है कि हमारी बॉडी को हर बार जब भी ओवम रिलीज होता है उसको ऐसे लगता है कि अभी एक स्पर्म आएगा और ये ओवम को फर्टिलाइज कर देगा और अभी प्रेगनेंसी होने वाली है, अभी मेरे अंदर बॉडी बेबी बनने वाला है. द फीमेल बॉडी एवरी टाइम द ओवम इज रिलीज, उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि इट फील्स कि ओके नाउ आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर प्रेगनेंसी. जैसे ही ओविडक्ट ने ओवम को पिकअप किया, वो अभी वहाँ पे वेट करेगा 1-2 दिन तक कि अभी कभी स्पर्म आएगा और कभी मुझे फर्टिलाइज करेगा. अभी यूट्रस को क्या लगेगा, अरे अभी स्पर्म आके ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, ये जाइगोट बन जाएगा. जाइगोट बनने के बाद में इसको तो मेरे पास ही आना है, इम्प्लांटेशन तो मेरे अंदर ही होना है, तो मुझे भी तो कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ना. आई हैव टू अकोमोडेट द ग्रोइंग चाइल्ड.
तो क्या करेंगे, अभी हमारा जो यूट्रस होता है उसको भी प्रिपेयर होना है, तो एंडोमेट्रियम, हमारे यूट्रस का एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम में जाके ही जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांट होता है। तो अभी अगर एंडोमेट्रियम को अपने अंदर जाइगोट अकोमोडेट करना है तो उसको बहुत ही थिक होना पड़ेगा, राइट। वो अगर पतला होगा, इफ इट विल बी थिन, विल इट बी एबल टू अकोमोडेट द जाइगोट? नो। सो एंडोमेट्रियम हैज़ टू बिकम थिक, उसके पास ब्लड वेसल्स होना चाहिए, उसके पास न्यूट्रिशन होना चाहिए, ताकि वो ये जाइगोट को अपने अंदर अकोमोडेट कर सके। तो एंडोमेट्रियम थिकनिंग अकर्स, ठीक है। और सारी एंडोमेट्रियम थिकनिंग होने लग जाती है, वहाँ ब्लड वेसल्स बनने लग जाते हैं, ऑल दैट स्टार्ट्स हैपनिंग। और ऑल दिस हैपन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। कौन से हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं यहाँ पे? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो जैसे ही ओविडक्ट ने ओवम को पिकअप कर लिया, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ जाता है और वो बॉडी में प्रेगनेंसी के प्रिपरेशन चालू कर देता है। एंडोमेट्रियम थिकनिंग स्टार्ट कर देगा, फीमेल के ब्रेस्ट ग्लैंड्स डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, ताकि अब क्या, अभी प्रेगनेंसी होने वाली ना, यू बी रेडी फॉर इट। सबसे पहले क्या हुआ, अभी यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल का हार्मोन बढ़ गया। अभी उसने क्या किया, इट कॉज मैच्योरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। जैसे ही ओवेरियन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन हुआ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ गया और उसने ओवम को बाहर छोड़ा। जैसे ही ओवम बाहर आया, ओविडक्ट ने उसको पिकअप कर लिया। बॉडी को लगा अभी तो स्पर्म आने वाला है, अभी तो प्रेगनेंसी होने वाली, तो उसने तैयारी शुरू कर दी प्रेगनेंसी की। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ गया और एंडोमेट्रियम थिक होने लगा। तो अभी ये लोग रेडी बैठे कि चलो अभी प्रेगनेंसी होने वाली है। बट दो सिचुएशन हो सकती है। ये पूरा चीज हो गया, ये सबको समझा के क्या हुआ, मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स, रिलीज ऑफ ओवम, एंड देन बॉडी ये पूरे ये फेज में है कि एंडोमेट्रियम थिकनिंग हुई है एंड इट इज थिंकिंग कि अभी प्रेगनेंसी होने वाली है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अभी दो सिचुएशन हो सकती है। एक कि जो बॉडी को लगा वो सही था, ओवम अभी ओविडक्ट के पास ही है, ठीक है, एंड बॉडी रेडी है कि प्रेगनेंसी होने वाली है। अभी दो सिचुएशन हो सकती है। एक कि जो बॉडी को लगा वो सही था, एक्चुअली बॉडी में एक स्पर्म आ जाता है एंड फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अभी ये ओवम जो है वो ओविडक्ट में 24 to 48 आवर्स रहता है। हाउ लॉन्ग इट स्टेज? 24 to 48 hours. And in that 24 to 48 hours, if a sperm enters the female's body, तो obviously it will go and fertilize the ovum. But अगर वो time पे नहीं आया, then there is no use also of that sperm entering the female's body. So if in that 24 to 48 hours period, when the ovum is present in the oviduct, if a sperm enters the female body, then it will fertilize the ovum. तो अगर sperm enters female body, ठीक है, तो it will fertilize the ovum. और ऑब्वियसली फिर आगे जो होता है वो जाइगोट बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा और प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो अभी क्या होता है, ये तो हो गया कि ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया और प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन अभी ये जो ओवेरियन फॉलिकल था जिसके अंदर जो ओवम प्रेजेंट था वो क्या करेगा, वो जो ओवेरियन फॉलिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ओके, दैट फॉलिकल इनसाइड विच ओवम वाज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में डेवलप हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन बनाएगा प्रोजेस्ट्रॉन। क्या बनाएगा? प्रोजेस्ट्रॉन। और ये प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन क्या होगा? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अभी ये तो आइडियल सिनेरियो हो गया कि स्पर्म आया, प्रेगनेंसी हो गई और ये सब कुछ हो गया, लेकिन अगर स्पर्म आया ही नहीं, if there is no sperm entry, which happens majority of the time, right? If there is no sperm entry तो क्या होगा? बॉडी ओवम ने वेट किया 24 आवर्स 48 आवर्स, देखेगा स्पर्म तो आ ही नहीं रहा है। अभी वो ओवम का लाइफ टाइम खत्म हो गया, उसका वायबिलिटी पीरियड खत्म हो गया। बॉडी भी देखेगी कि मैंने इतनी तैयारी की, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, एंडोमेट्रियम इतना थिक हो गया, बट कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जो सब हुआ, जो सारे इवेंट्स हुए थे वो उल्टा हो जाएगा। जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बढ़ा था वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा। अब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कम हो गया
तो जो एंडोमेट्रियम इतना थिक हुआ था वो फिर से क्या हो जाएगा, उसकी थिनिंग हो जाएगी, वो शेड होने लग जाएगा, राइट. सो व्हाट दिस विल रिजल्ट इन, दिस विल रिजल्ट इन टू शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम. तो ये एंडोमेट्रियम भी बाहर शेड होने लग जाएगा और हमारा जो ओवम था वो भी अभी वेस्ट हो गया. तो वो ओवम भी अभी बोलेगा कि मैं यहाँ रह के क्या करूँ. सो इट विल ऑल्सो स्टार्ट श्रेडिंग, इट विल ऑल्सो स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग. तो ये सब एक वेस्ट मैटर ही हो गया ना अभी बॉडी के लिए. बॉडी क्या करेगी, वो ओवम का उसका वायबिलिटी पीरियड भी खत्म हो गया है. ये एंडोमेट्रियम भी नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेब्रीज, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मैटर. So all this endometrial debris, all the ovum which is of no use now, all that will be expelled out of the female's body in the form of menstrual blood through the vagina. So in the form of menstrual blood, it will be expelled out through the female body from the vagina. एंड मतलब इट विल वेट फॉर सम टाइम. अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ऑल दिस विल स्टार्ट शेडिंग और वो पूरा वेस्ट मैटर ब्लड के फॉर्म में फीमेल की बॉडी से वेजाइना के थ्रू निकल जाएगा. एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, द प्रोसेस बाय विच ऑल द वेस्ट मैटर, ऑल द एंडोमेट्रियल डेब्रीज एंड द अनफर्टिलाइज्ड ओवम इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द फीमेल बॉडी थ्रू द वेजाइना इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड दिस हैपन्स एवरी मंथ. एवरी मंथ एक पर्टिकुलर पीरियड पे फीमेल की बॉडी में ये क्लॉक की तरह चलता है. वो एक पर्टिकुलर पीरियड पे एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, फिर वो ओवम बाहर निकलेगा, फिर वो हर मंथ वेट करेगा 2 दिन के लिए. फिर अगर आ गया कोई तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर स्पर्म नहीं आया तो एवरी मंथ ये साइकिल होगी. एंड एवरी मंथ दिस मेंस्ट्रुअल ब्लड विल लीव द फीमेल्स बॉडी एंड दिस leakage of blood from the female's body lasts for a period of 3 to 5 days. How many days? 3 to 5 days, which is absolutely normal to occur in females. ठीक है. तो अभी ये कॉर्पस ल्यूटियम बना था ना यहाँ पे, अगर स्पर्म एंटर हुआ, अगर यहाँ पे स्पर्म एंटर नहीं होगा तो क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस. क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस. और ये कॉर्पस एल्बिकेंस भी बॉडी के बाहर ये मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ में निकल जाएगा. So this was about menstrual cycle. ठीक है. So we learnt about menstrual cycle, we learnt about embryonic development, we learnt about pregnancy. Now all of you all must have seen twins sometimes, right? Twins babies होते हैं, twins भाई बहन होती है, twins बहनें होती है, twins भाई होते हैं. So how are these twins produced? They look very cute together. I mean, I personally find them very cute. So how are these twins produced? ठीक है. अभी आपने देखा होगा ट्विंस भी जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक ट्विंस ऐसे होते हैं, एक पेयर ऑफ ट्विंस जो दोनों एकदम सेम दिखते हैं, लाइक यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि कौन सा वाला कौन है. दे आर टोटली सेम इन देयर लुक्स, दे आर टोटली आइडेंटिकल. एंड अगर बोथ ऑफ देम विल बी ऑफ द सेम जेंडर, बोथ ऑफ देम विल बी मेल और बोथ ऑफ देम विल बी फीमेल. ठीक है. और एक ट्विंस होते हैं जो कि सेम नहीं दिखते हैं, लाइक दे आर ट्विंस, दे आर बॉर्न टुगेदर ओनली बट दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एंड दे कैन बी ऑफ डिफरेंट, दे कैन बी ऑफ सेम जेंडर ऑल्सो एंड दे कैन बी ऑफ डिफरेंट जेंडर ऑल्सो. लाइक एक मेल एंड एक फीमेल भी हो सकता है. एंड दे डू नॉट लुक सिमिलर टू ईच अदर एंड दे आर कॉल्ड एज फ्रेटर्नल ट्विंस. व्हाट आर दे कॉल्ड एज? फ्रेटर्नल ट्विंस. ठीक है. तो ट्विंस 2 टाइप के होते हैं, एक आइडेंटिकल ट्विंस विच लुक टोटली सेम एंड एक फ्रेटर्नल ट्विंस विच लुक डिफरेंट. सो नाउ द क्वेश्चन इज ये ट्विंस बनते कैसे. अभी हम लोग को पता है कि सबसे पहले तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है. ठीक है. द मेल गैमेट विल फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. अभी आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, ये जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, एक जाइगोट बना है. ठीक है. ओनली 1 जाइगोट इज फॉर्म. Now what happens is within 8 days of fertilization, how many days? Within 8 days of fertilization, this zygote divides into 2 parts, zygote 1, zygote 2. ठीक है. Obviously through mitosis only. तो ये एक जाइगोट ने within 8 days of fertilization अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो 2 जाइगोट बन गए. तो ऑब्वियसली 2 जाइगोट बनेंगे तो 2 बेबीज प्रोड्यूस होंगे. सो
आइडेंटिकल ट्विंस में क्या हुआ, एक ही जाइगोट से दो अलग अलग जाइगोट बने, राइट। तो ये जाइगोट के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो एक ही है, एक ही स्पर्म का और एक ही ओवम का। तो ऑब्वियसली ये एक ही जाइगोट से दो जाइगोट बने हैं तो दोनों सेम ही दिखेंगे ना, वो लोग में कोई अलग वेराइटी आएगी नहीं, क्योंकि एक ही स्पर्म है एक ही ओवम है, वो तो जाइगोट ने अपने आप को बाद में डिवाइड कर लिया। तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, विद इन 8 days ऑफ फर्टिलाइजेशन दिस जाइगोट विल डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 which will lead to the formation of 2 more zygote, and as they have the same genetic material, the twins which are produced over here will be identical in nature, वो लोग totally same रहेंगे, मतलब बना तो एक ही था लेकिन वो एक zygote ने अपने आप को दो में डिवाइड कर लिया। So this will lead to the formation of identical twins। अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर ये जो डिवीजन है ये 8 days से थोड़ा ज़्यादा हो गया, सपोज इट हैपन्स आफ्टर 15 days और हैपन्स आफ्टर 20 days, तो एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। व्हाट कैन बी दैट कॉम्प्लिकेशन, ये जाइगोट डिवाइड तो होगा बट पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, एक तरह से ये दो में डिवाइड हो जाएगा बट उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना रहेगा, लाइक दे विल डिवाइड बट दे विल नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दो इंडिविजुअल्स तो बन जाएंगे जिनके पास दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर है, बट वो लोग दो अलग अलग लोग नहीं रहेंगे, वो लोग दोनों आपस में ज्वाइंट रहेंगे। सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस। व्हाट इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस, और इनको हम लोग एक और वर्ड है जिनको बोलते हैं सियामीज ट्विंस। तो ये कॉन्जॉइंट ट्विंस क्या होते हैं, ये लोग दोनों आपस में जॉइंट होते हैं। बहुत पहले एक सीरियल आता था अंबर धरा, सो दैट हैड शोन दिस फिनोमिनन इन विच बोथ द सिस्टर्स दे वर जॉइंट टू ईच अदर, ठीक है, ईदर देयर हैंड्स कैन बी जॉइंट टू ईच अदर, समटाइम्स देयर हेड इज जॉइंट टू ईच अदर। सो इफ ये जो आइडेंटिकल ट्विंस है इसमें अगर विद इन 8 days वो लोग सेपरेट हो गए और जाइगोट ने डिवाइड कर लिया, तो दे विल बी 2 different individuals। बट अगर 8 days से ज़्यादा हो गया, दिस इज़ वेरी वेरी रेयर, लाइक 1 in a million times इट हैपन्स कि 8 days के बियॉन्ड जाके अगर डिविजन हो रहा है, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो लोग आपस में ज्वाइन रहेंगे एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस, ठीक है। सो ये तो हो गया कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं। अभी फ्रेटर्नल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है पता है, जनरली हमारी जो ओवरी होती है फीमेल की वो एक टाइम पे एक ही ओवम रिलीज करती है, बट समटाइम्स वेरी रेयरली इट हैपेंस दैट द ओवरी विल रिलीज 2 ओवम्स, ओवम 1 ओवम 2, तो 2 ओवम आ गए। तो अभी स्पर्म स्विमिंग करते करते आएंगे, वो लोग एक स्पर्म ये ओवम के पास पहुंच जाएगा, बट दूसरा स्पर्म देखेगा कि अरे मेरे पास भी एंट्री है, यहाँ पे एक और ओवम है जो मेरे लिए वेट कर रहा है, तो यहाँ पे स्पर्म 1 आ गया, यहाँ पे स्पर्म 2 आ गया, तो 2 अलग अलग ओवम को 2 अलग अलग स्पर्म ने आके फर्टिलाइज किया, तो ऑब्वियसली दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 जाइगोट्स अगेन, सो 2 चिल्ड्रन विल बी प्रोड्यूस। तो इफ द ओवरी ने ही 2 ओवम रिलीज किए तो ऑब्वियसली उनको फर्टिलाइज करने के लिए 2 स्पर्म लगेंगे, एंड 2 स्पर्म ने 2 ओवम को फर्टिलाइज किया तो 2 जाइगोट बनेंगे। बट यहाँ पे कैसा था, देवर 2 डिफरेंट ओवम्स एंड देवर 2 डिफरेंट स्पर्म्स, तो दोनों के पास अलग अलग जेनेटिक मटेरियल है, राइट, दोनों एक ही चीज से नहीं बने, दोनों 2 अलग अलग चीज़ों से बने हैं, दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग होगा, इसीलिए ये जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं दे डू नॉट लुक सिमिलर टू ईच अदर एंड नॉट नेसेसरी कि वो लोग के पास सेम जेंडर भी हो, एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है या सेम भी हो सकते हैं, बट दे विल नॉट लुक एग्जैक्टली सेम टू ईच अदर लाइक आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। तो आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं, जाइगोट का डिवीजन हो जाता है, एक ही जाइगोट बनता है जो विद इन 8 days डिवाइड होके 2 जाइगोट बना लेता है, तो दे लुक एग्जैक्टली आइडेंटिकल। एंड फ्रेटर्नल ट्विंस कैसे बनते हैं, दे आर 2 ओवम आर रिलीज, तो वो 2 ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए 2 स्पर्म आते हैं एंड 2 जाइगोट बनते हैं। अभी ये आइडेंटिकल ट्विंस एक ही जाइगोट से बने, राइट, एक ही जाइगोट ने 2 जाइगोट बनाए, सो दे आर कॉल्ड एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। व्हाट दे आर कॉल्ड एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनो का मतलब होता है 1, दे आर फॉर्म फ्रॉम 1 जाइगोट ओनली, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एंड ये जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्यों डाई, डाई का मतलब होता है 2 एंड ये लोग 2 अलग अलग जाइगोट से बने हैं, राइट, एक ही जाइगोट नहीं बनाता, यहाँ पहले ही 2 जाइगोट बने, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज डाइजाइगोटिक ट्विंस। So identical twins are monozygotic twins and fraternal twins are dizygotic. So we learnt about sexual reproduction in human beings, menstrual cycles, twin कैसे बनते हैं वो सब हमने देखा। अभी there is a small topic called as modern reproductive technology.
modern reproductive technology. Now what happens is sometimes थोड़े couples होते हैं which are unable to produce a child. Now this can be due to certain problems in the male partner and this can be due to certain problems in the female partner. They are not able to conceive a child. ठीक है. So उसके लिए what can be done in such cases with the advent of science and technology, बहुत सारी ऐसी नई techniques बनी है which can help such couples to get a child. So suppose इसमें से एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं in vitro fertilization. क्या बोलते हैं? in vitro fertilization. इसका शॉर्ट फॉर्म है IVF. नाउ अगर सपोज एक फीमेल है, ठीक है, एंड वो फीमेल ओवम तो बना पा रही है बट शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव नेचुरली, यानी कि उसकी बॉडी में ओवम तो बन रहा है बट स्पर्म बॉडी में आने के बावजूद फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. देयर इज सम प्रॉब्लम कि उसका जो ओविडक्ट है, उसका जो फेलोपियन ट्यूब है वो ओवम को पिकअप नहीं कर रहा है, या फिर उसकी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो बहुत नैरो है, वहाँ से स्पर्म स्विमिंग करके जा नहीं पा रहे, यानी कि ओवम रिलीज होने के बावजूद, स्पर्म बॉडी में आने के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. सो व्हाट कैन बी डन इन सच अ केस? what do they do? They remove the ovum from the female's body and they remove the sperm from the male's body. ठीक है, फीमेल बॉडी में से ओवम ले लिया, मेल बॉडी में से स्पर्म ले लिया एंड दे डू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ टेस्ट ट्यूब. सबने टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा, राइट? मतलब फीमेल की बॉडी में तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है इंटरनली, बट वो लोग गैमेट्स बना पा रहे. सो दे रिमूव द गैमेट्स फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट एंड व्हाट दे डू इज दे डू द फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली इन अ टेस्ट ट्यूब. तो वो जो एनवायरनमेंट वो लोग क्रिएट करते हैं वो टेस्ट ट्यूब के आसपास, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द एनवायरनमेंट इन अ मदर्स वूम. वैसा ही एनवायरनमेंट, वैसा ही टेम्परेचर वगैरह वो लोग क्रिएट करेंगे ताकि बाहर अच्छे से वो बेबी डेवलप हो सके. And then the baby is actually developed outside the body. That is in vitro fertilization. In vitro मतलब outside the body. तो क्या होता है? She is unable to, if fertilization is not possible to do inside the body, we do fertilization outside the body. ये होता है in vitro fertilization. Then there is one more technique which is called as surrogacy. Now surrogacy में क्या होता है? Sometimes a female, उसका फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है उसकी बॉडी में, सब कुछ बराबर है, बट जैसे ही जाइगोट बनता है हर यूट्रस इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू अकोमोडेट द चाइल्ड. मतलब शी कंसीव, जाइगोट उसकी बॉडी में बन जाता है बट विद इन लाइक 1 month or 2 months ओनली शी हैज़ अ मिसकैरेज बिकॉज हर यूट्रस इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू अकोमोडेट द जाइगोट. वो लोड ही नहीं ले पा रहा है वो जाइगोट का, सो शी कैन नॉट कंसीव. तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि यहाँ पे शी इज़ एबल टू फर्टिलाइज, राइट? उसके बॉडी में फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है. सो व्हाट इज़ डन इन सच केसेस? बॉडी में फर्टिलाइजेशन होने देते हैं वो फीमेल के, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज डन दैट जाइगोट इज टेकन आउट फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी एंड किसी और फीमेल, कोई और फीमेल जो विलिंगली रेडी है ये कपल को हेल्प करने के लिए एंड जिसका यूट्रस स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो एक बेबी को अकोमोडेट कर सके, उसके यूट्रस में ये जाइगोट को इम्प्लांट कर देते हैं एंड देन उसके यूट्रस में वो जाइगोट ग्रो होगा एंड वो बेबी फाइनली इनको दे देगी. मतलब ऐसे कि आप अपने घर में बिरयानी बना रहे हो, आपके पास मसाला है, मतलब जो भी चीज़ें लगती है बिरयानी बनाने के लिए वो सब है, बट आपके पास बर्तन नहीं है. लाइक आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि आपके पास बिरयानी बनाने का सारा मटेरियल है बट यू डू नॉट हैव अ वेसल, ठीक है, या फिर आपके पास जो बर्तन है बिरयानी बनाने के लिए वो प्रॉपरली नहीं है, वो प्रॉपरली आपको फ्लेवर नहीं दे पा रहा है या आपका खाना कच्चा रह जा रहा है जब आप बर्तन में, तो यू विल गो टू समवन एंड से कि देखो मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मुझे बस आपका पतीला दे दो जिसमें मैं मेरी बिरयानी बना सकूँ. सो यहाँ पे सारा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स का ही है, ओवम, स्पर्म वगैरह, बस दे आर यूजिंग दैट फीमेल्स यूट्रस और दे आर यूजिंग दैट फीमेल्स वूम टू अकोमोडेट देयर चाइल्ड. So that female can do it willingly, she can do it in exchange of money, whatever, that is their own perspective. And surrogacy is now legal in India. Okay, initially it was allowed only in foreign countries but now it is legal in India. That is surrogacy. ठीक है, so this can be done if there is a problem in the female. Now what if there is a problem in the male? अब मेल में क्या हो सकता है? मेल में या तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है,
स्पर्म काउंट कम होना मतलब क्या, स्पर्म्स होते हैं मेल गैमेट्स, तो सीमेन में जितने स्पर्म्स है वो बहुत कम है। अभी कैसे होता है, स्पर्म्स जब स्विमिंग करके ओवम के पास जाते हैं ना, तो वो स्विमिंग के रास्ते में ही बहुत सारे स्पर्म्स मर जाते हैं, तो वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होने के बावजूद भी अल्टीमेटली जब वो ओवम तक बहुत कम पहुंच पाते, क्योंकि आधे तो रास्ते में ही मर गए, तो ऑलरेडी अगर सीमेन में स्पर्म्स कम होंगे तो ओवम के पास कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। तो स्पर्म काउंट हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मेल्स में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लो स्पर्म काउंट, एक तो हो गया लो स्पर्म काउंट। दूसरा हो सकता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं उनके अंदर, सो अगेन नथिंग कैन बी डन। और इनएबिलिटी टू डिपॉजिट सीमेन इन वेजाइना, मतलब स्पर्म्स भी बन रहे हैं और स्पर्म काउंट भी अच्छा है, बट वो स्पर्म्स को डिपॉजिट ही नहीं कर पा रहे वेजाइना में, यानी कि उनके पेनिस में कुछ प्रॉब्लम है। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है, सो व्हाट कैन बी डन फॉर मेल्स, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव कॉल्ड एज स्पर्म बैंक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अभी स्पर्म बैंक क्या, सबने ब्लड बैंक तो सुना होगा। ब्लड बैंक में क्या होता है, डोनर्स अपना ब्लड डोनेट करके रखते हैं एंड जिसको भी ब्लड की ज़रूरत होती है दे कैन गो टू दैट ब्लड बैंक एंड दे कैन टेक दैट ब्लड। वैसे ही स्पर्म बैंक्स होती है, स्पर्म बैंक्स में ना स्पर्म डोनर्स होते हैं, लाइक पीपल गो एंड एक्चुअली डोनेट देयर स्पर्म्स ओवर देयर, समटाइम्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी एंड समटाइम्स इवन फॉर फ्री। So what happens is whenever a couple goes and ऐसा couple है जिसमें मेल पार्टनर का sperm count कम है, so what they can do is they can borrow a sperm from this sperm bank. They can take a sperm from this sperm bank and this sperm is then injected in the body of female and then fertilization occurs. तो ये एक sperm bank का alternative है। ये किन couples में यूज हो सकता है जिनमें sperm so artificial insemination. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, इफ द मेल इज हैविंग अ गुड स्पर्म काउंट, ही इज एबल टू प्रोड्यूस गुड स्पर्म्स, बट उसके पेनिस में प्रॉब्लम है एंड ही इज अनएबल टू डिपॉजिट द सीमेन इन द वेजाइना। सो व्हाट इज डन इज द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल एंड उसको आर्टिफिशियली फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट कर देते, मतलब नेचुरली नहीं जा पा रहा तो इंजेक्शन के थ्रू उसको फीमेल बॉडी में डाल देते एंड फिर दैट स्पर्म विल गो एंड इट विल फर्टिलाइज द ओवम। ठीक है, सो मेल्स के लिए कौन कौन सी टेक्निक है, स्पर्म बैंक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एंड देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या, ऑल ऑफ यू ऑल नो कि फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, यू शुड बी फिजिकली हेल्दी, यू शुड बी फ्री ऑफ डिजीज, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग हमारी कैसे मेंटेन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर फीमेल्स, whenever females are having their menstrual cycle they should maintain proper hygiene, because वो टाइम पे if females do not maintain a proper hygiene they are prone to get many diseases. Okay, they are all your private parts should be clean, this is one thing. Then all of you all must have heard about sexually transmitted diseases, जैसे एड्स होती है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है। तो ये सारी डिजीजेस कैसे फैलती है, इट स्प्रेड्स थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ मल्टीपल पार्टनर्स। अगर आपके पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी प्रोटेक्टिव डिवाइस लाइक अ कॉन्डम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपके किसी एक पार्टनर को भी कोई डिजीज है यू विल कॉन्ट्रैक्ट दैट डिजीज। So how do you maintain? You should avoid having multiple sexual partners and you should always avoid having unprotected sexual contact. This is one thing, and you should spread awareness amongst people about reproductive health. So with this we complete the chapter Life Processes in Living Organisms Part 2.